Hello everyone. In this video, we are going to discuss report of Cadbury Committee on Corporate Governance. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy of Commerce, where learning and education is imparted in an easy way. If you're new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's discuss reports of corporate governance. In the earlier video, we discussed the need and nature of corporate governance. So from there we understood what is the need of corporate governance in the business, क्या नीड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और कैसे नीड अराइज हुई कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे स्कैंडल्स और स्कैम्स हुए, और वह स्कैंडल्स और स्कैम्स क्यों हुए, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम में कुछ फ्लोज थे, कुछ कमियां थी। तो उन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम के फ्लोज को दूर करने के लिए डिफरेंट कमिटीज फॉर्मुलेट की गई और उन कमिटीज ने कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की जिनको फॉलो करके कंपनीज अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को एफिशिएंट बना सकती हैं और उन कमियों को दूर कर सकती हैं। So there are different committees were formulated for corporate governance, and some of those committees are Report of Cadbury Committee on Corporate Governance, which published its report in 1992, Greenberry Report on Corporate Governance in 1995, Hempel Report on Corporate Governance in 1998, Sarbanes-Oxley Act in 2002, Miner's Report on Corporate Governance in 2004, and Principles of Corporate Governance by the Organization for Economic Cooperation and Development, that originally published its report in 1998, but then it was revised and published in 2004. So these are the different committees which were formulated at the international level to provide the recommendations for efficient corporate governance system. And in this video, we will discuss the Cadbury Committee report on corporate governance. So let's understand what is the report of Cadbury Committee on the corporate governance. Firstly, we will understand the background and need of Cadbury Committee on corporate governance. क्या नीड अराइज हुई कैडबरी कमेटी जिसकी वजह से फॉर्मुलेट की गई, क्या बैकग्राउंड है कैडबरी कमेटी रिपोर्ट का। So in UK, due to rise in scandals and financial collapses in the late 1980s and early 1990s, that made the shareholders and bank worry about their investment, and this led the UK government to recognize lack of legislation and role of self-regulation as a measure of controlling scandals and financial collapses. यूके में बहुत सारे स्कैंडल्स और फाइनेंशियल कोलैप्सेस हुए जिसकी वजह से बिग कॉर्पोरेट हाउसेस पर इफेक्ट पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस से बंद हो गए। यह स्कैंडल्स हुए लेट 1980s और 1990s में, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स और बैंक्स थे जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी वह अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर वरिड थे कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। तो इसकी वजह से यूके गवर्नमेंट ने यह नीड रियलाइज की कि जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम है, लॉज हैं, उसमें कुछ कमियां हैं और जिसकी वजह से कंपनीज का गवर्नेंस सिस्टम एफिशिएंट नहीं है। तो वहां पर नीड अराइज हुई कि कैसे इन स्कैंडल्स को और फाइनेंशियल कोलैप्सेस को रोका जाए और उनको कंट्रोल करने के लिए एज अ मेजर एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम की नीड अराइज हुई। सो सम ऑफ द कॉर्पोरेट डिजास्टर्स टुक प्लेस प्राइमरली ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो ये जो कॉर्पोरेट डिजास्टर्स हुए, फाइनेंशियल स्कैंडल्स या स्कैम्स हुए, इसका प्राइमरी रीजन क्या था कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं उनको सही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, उसमें कुछ कमियां थी। So from there the need arises for the Cadbury Committee. So to prevent the reoccurrence of such business failures, in May 1991 the Cadbury Committee was set up by London Stock Exchange to help raise standard of corporate governance. यहाँ से नीड अराइज हुई जिसकी वजह से कैडबरी कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया। तो इस तरह के बिजनेस फेल्योर्स के रीअकरेंस को, कि यह बिजनेस फेल्योर्स फिर से ना हो, उसको रोकने के लिए मई 1991 में कैडबरी कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया। कैडबरी कमेटी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था सो दैट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम का स्टैंडर्ड है उसको रेज किया जा सके, उसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके, और इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की थी। सो द कमेटी पब्लिश्ड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1992।
कमेटी के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी वह प्रेजेंट की गई थी 1992 में, और 19 मई 1991 में इस कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया था। Who formulated this committee? Sir George Adrian Cadbury. He was the chairman of Cadbury Committee. Cadbury Committee published Code of Best Practices. Like you can see in the picture, he is Sir George Adrian Cadbury, जो कि चेयरमैन है कैडबरी कमेटी के, जिन्होंने इस कैडबरी कमेटी को फॉर्मुलेट किया, और कैडबरी कमेटी के द्वारा कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रेस्क्राइब किया गया, पब्लिश किया गया कंपनीज के लिए. In the further slides, we will discuss what is the code of best practices. So let's understand. What is the outline of the report that was presented by Cadbury Committee? The Cadbury report, formally entitled the report of the committee on the financial aspects of corporate governance. Cadbury Committee report मेन फोकस किस पर करती है? कंपनीज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर. तो जो रिपोर्ट टाइटल की गई वह क्या था? रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिकॉज ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है. So the Cadbury Committee addressed the financial aspects of corporate governance, and to address these the financial aspects of corporate governance, in corporate governance के financial aspects को address करने के लिए Cadbury Committee के द्वारा क्या prescribe किया गया? The committee prescribed the code of best practices. And what is the code of best practices? All boards of UK listed companies should comply with it. कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस में प्रेस्क्राइब किया गया कि यूके लिस्टेड सभी कंपनीज को इस कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंप्लाई करना होगा. सो कैडबरी कमेटी रिपोर्ट किन के लिए कंप्लायंस नेसेसरी करती है? यूके लिस्टेड कंपनीज पर ही एप्लीकेबल होती है. स्पेसिफिकली दे रिकमेंडेड दैट लिस्टेड कंपनीज शुड इनकॉर्पोरेट अ फॉर्मल स्टेटमेंट इनटू देयर रिपोर्ट एंड अकाउंट्स outlining whether or not they comply with each of the code's provisions. इसके अलावा जो स्पेसिफिक फोकस किया इस कंपनी की रिपोर्ट ने, इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, यूके लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको अपने रिपोर्ट्स और अकाउंट्स में एक फॉर्मल स्टेटमेंट देनी होगी. किस तरह की फॉर्मल स्टेटमेंट देनी होगी? उनको यह प्रेस्क्राइब करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा कि जो कोड की प्रोविजंस हैं, जो कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस में कैडबरी कमेटी के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए हैं, कि क्या वह कंपनीज वह कोड प्रोविजंस को कंप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही. And in respect of areas of non-compliance, an explanation of the reason was sought. और अगर कंपनीज उन कोड्स प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रही, मीन्स नॉन कंप्लायंस है, तब उन कंपनीज को रीजन की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करनी होगी. तो कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस में प्रोवाइड किया गया कि कंपनीज, यूके लिस्टेड कंपनीज उनको कंप्लाई करेंगी, और उनके कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस का एक्सप्लेनेशन उनको अपने रिपोर्ट्स और अकाउंट्स में प्रेजेंट करना होगा. एंड ऑडिट is also necessary, and regarding audit, what is the recommendation? Further to this, the report recommended that the compliance statement made by the companies be reviewed by auditors prior to the release of annual audit. तो यहाँ पर ऑडिटर का क्या रोल है? कंपनीज, बिकॉज कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना कंपनीज के लिए नेसेसरी था, जो यूके लिस्टेड कंपनीज थी, और वह कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस भी प्रेस्क्राइब करेंगे. अगर कंपनीज कंप्लाई कर रही हैं तो वह उनके द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा, अगर नॉन कंप्लायंस है तो उसका रीजन उनको देना होगा. लेकिन और क्या प्रेस्क्राइब किया गया? रिपोर्ट ने यह रिकमेंड किया कि जो भी कंपनीज के द्वारा कंप्लायंस स्टेटमेंट दी जा रही हैं, वह स्टेटमेंट्स ऑडिटर्स के द्वारा रिव्यू की जाएंगी, इससे पहले कि उसको एनुअल रिपोर्ट में रिलीज किया जाए. ऑडिटर्स ये चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि क्या कंपनी ने जो कंप्लायंस स्टेटमेंट दी है कि वह कोड्स प्रोविजन को कंप्लाई कर रही है, क्या कंपनी सच में ऐसा कर रही है, और अगर नॉन कंप्लायंस है तो उसका जो रीजन स्पेसिफाई किया गया है वह रीजन सही है या नहीं है. तो ऑडिटर्स उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद कंपनीज अपनी एनुअल रिपोर्ट को रिलीज कर सकती है. So this is the outline of the report. Here we will discuss what are the key focus of provisions of Code of Best Practices. Code of Best Practices के key focus areas क्या हैं? And it is divided into 4 focus areas. These are the focus areas on which the recommendations of this Cadbury Committee report is based. So first focus area is composition of the Board of Directors. कि Board of Directors का composition क्या होगा? Board of Directors में कौन कौन से directors होंगे?
सेकेंड फोकस एरिया अपॉइंटमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, वह इंडिपेंडेंट कैसे होंगे। द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या स्पेसिफाई किया जाएगा, कैसे उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाएगा। एंड फोर्थ वन इज कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल्स की कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंट्रोल के रिगार्डिंग क्या रिकमेंडेशंस इस कमेटी में के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई। So these are the four focus areas upon which the recommendations are based. So in the next slide we will discuss what are the recommendations of Cadbury Committee report. The main recommendations of report of Cadbury Committee are, the first recommendation is most non-executive directors should be independent of management and free from any business or other relationships. मोस्टली जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे कंपनी में वह इंडिपेंडेंट होंगे, किससे, मैनेजमेंट से और कंपनी के बिजनेस से। मींस उनका कंपनी की मैनेजमेंट और बिजनेस से कोई भी लिंक नहीं होगा, तभी पॉसिबल है कि वह अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट कंपनी की ऑपरेशंस के बारे में दे पाए। सेकेंड रिकमेंडेशन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफाइड टर्म्स। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे वह स्पेसिफाइड टर्म्स पर अपॉइंट किए जाएंगे और स्पेसिफाइड टर्म्स स्पेसिफाई की जाएंगी पहले ही। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट एक्सीड 3 years। जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा डायरेक्टर्स का वह 3 years से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, मैक्सिमम 3 years का होगा। फोर्थ रिकमेंडेशन इज एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन शुड बी सब्जेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी मेड अप एंटायरली और मेनली ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड की जाएगी, वह रेम्यूनरेशन जो डिसाइड की जाएगी वह किसके बेसिस पे डिसाइड की जाएगी, रेम्यूनरेशन कमेटी की रिकमेंडेशंस के द्वारा। और रेम्यूनरेशन कमेटी में जो मेंबर्स होंगे जिनके द्वारा रिकमेंडेशंस प्रेस्क्राइब की जाएंगी उसमें मेनली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, या तो रेम्यूनरेशन कमेटी के सभी मेंबर्स या फिर उसके मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे और वह प्रेस्क्राइब करेंगे कि एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए, क्या मोड होना चाहिए। एंड द फिफ्थ recommendation of Cadbury committee report is an audit committee comprising of at least 3 non-executives should be established। एक ऑडिट कमेटी फॉर्मुलेट की जाएगी और उस ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए और वह ऑडिट कमेटी एस्टेब्लिश की। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि ऑडिट कमेटी के द्वारा, ऑडिटर्स के द्वारा यह भी वेरीफाई किया जाता है, रिव्यू किया जाता है कि कंपनी ने जो कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस स्टेटमेंट्स दी हैं यह क्रॉस चेक किया जाएगा ऑडिट कमेटी के द्वारा क्या वह सही है, और जब वह ऑडिटर्स उनको रिव्यू कर देंगे कंपनी उसके बाद अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को रिलीज कर सकती है। So these are the 5 main recommendations that were prescribed by report of Cadbury committee. And these all the recommendations are applicable on the listed companies in UK. So in conclusion we can say कि Cadbury committee के द्वारा एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम प्रेस्क्राइब किया कंपनीज के लिए, एक बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम प्रेस्क्राइब किया गया जिसके द्वारा वह स्कैंडल्स और स्कैम्स को रोक सकते हैं। और काफ़ी कंपनीज ने अपने प्रोसीजर्स और कंडक्ट को इसके अनुसार चेंज भी किया, बिकॉज जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे और इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे उन्होंने लिस्टेड कंपनीज को अर्ज किया कि वह अपनी स्पॉन्सरशिप और एडवाइस तभी प्रोवाइड करेंगे अगर वह उन प्रोविजंस को अडॉप्ट करेंगे। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज ने अपने गवर्नेंस प्रोसीजर्स और कंडक्ट को कैडबरी कमेटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग चेंज किया। So this is the Cadbury committee report. I hope you must have understood this very well. In the next video, we will discuss Greenberry committee report on corporate governance. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.